So, good afternoon, friends. Once again, welcome to our Environmental Engineering 2, Unit number 2. We have finished our Unit number 1 yesterday. It will be my request to all of you. Once again, please go through that units, please go through the videos, lectures, notes, etc. And then and only then you can understand the next units very well. This unit number 2 mainly deals with the constructional aspects of the sewer, its appurtenances, सीवरेज सिस्टम जो है उसके बांधकाम के बारे में और उसमें के जो appurtenances है उसके बारे में है मेनली। इसके कुछ पार्ट में जो लास्ट पार्ट है उसमें हाउस प्लम्बिंग के बारे में है और सीवेज पंपिंग के बारे में है। ये यूनिट 2 का ये सिलेबस है कि जो मैंने बताया वैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीवर, appurtenances means sewer and appurtenances together we call it as the sewerage system. Then हमारे घरों में जो प्लम्बिंग रहता है, जो पाइप either the wastage from our sinks, kitchens etc. as well as from our toilets. Okay, the grey water and the black water, ये दोनों का प्लम्बिंग के बारे में कुछ जो है हमारे थोड़ा बेसिक नॉलेज हमें इसमें सिलेबस में है ये यूनिट में। और एक सीवेज पंपिंग हमें बहुत बार करना पड़ता है ना। मैंने बताया अभी बहुत अच्छा डिस्कशन हमारे एक दो स्टूडेंट के साथ में हुआ कि कुछ कारणवश a very nice difficulty he has raised, प्रीतेश, दैट सर हम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल का जरा प्रॉब्लम है, या प्रैक्टिकल नॉलेज ही मीन टू से। तो ये है यार, अभी इफ वी वुड हैव बीन आवर कॉलेज इन दिस एट दिस टाइम वी वुड हैव डेफिनेटली विजिटेड दी भांडेवाड़ी ट्रीटमेंट प्लांट। यदि वो आपने देखा, या मैं फिर से बोलूंगा यदि पॉसिबल है तो आपके गांव के पास में, घर के पास में कोई, लेकिन फिर से कोरोना की रिस्क लेते हुए मत जाइए। तो वो ट्रीटमेंट प्लांट देख लिया कि आपको आधा सब्जेक्ट आपका आ गया, ऐसा ध्यान में मेरे को मालूम है। इफ यू विजिट दैट ट्रीटमेंट प्लांट योर हाफ सब्जेक्ट विदाउट स्टडिंग यू विल अंडरस्टैंड। इतना जो हम पढ़ते हैं वो उसमें है। जैसे ये यूनिट में सीवेज पंपिंग है तो पंपिंग स्टेशन है, various treatment units which are there in our syllabus, all are there very nicely. Treatment plant is erected there and the work is going on. So in future we will definitely visit someday or other. So let us move to our subject, that is the laying of the sewers. सीवर का लेइंग करना है, कुछ appurtenances कैसे बांधकाम करते हैं वो हम देखते जाते हैं। तो in our last unit we have learnt about the types of the sewers. Okay, we have seen that the basic sewers are the building sewers, and also some of our friend or maximum of the students have expressed that the latecomers should not be entertained. Again, it will be my request to all of you, okay, because I like the students. I like that maximum of you should attend the class, but it will be my humble request. Please join at the most 5 minutes late. है ना, बहुत बार आपको प्रॉब्लम आ सकता है नेटवर्क का, तो 5 मिनट लेट तक के मैं अलाउड करूंगा अगले बार से, है ना। अभी हम 10-15 मिनट हो गए, स्टिल वी आर एंटरिंग इनटू द क्लास। You have the difficulty, I know very well. Okay, it's my simple and humble request. So the types of the sewers we have seen, the basic from building to building, the sewage is taken out, maybe a storm sewage or maybe a sanitary sewage from an individual resident or the building, that is called as the building sewer, basic.
and then building sewers are connected together to bring the sewage towards the main pipeline by the sewers called as the lateral sewers. They are also called as the branch or the collecting sewers. These lateral sewers together, again they are connected together to the big sewer line called as the main sewers. Okay, and these main sewers from the various colonies, localities, etc., are brought together again to a big gutter line or a sewer line. They are called as the trunk sewer, and these trunk sewers from the various colonies and the localities, bunch of the colonies and the localities together, they are joined to a main pipeline that is called as the intercepting sewer, and this intercepting sewer takes the sewage to the outfall और द ट्रीटमेंट प्लांट, है ना. बहुत बार ऐसा वर्ड आता है, आउटफॉल आउटफॉल आउटफॉल. सो व्हाट इज दिस आउटफॉल? आउटफॉल मींस द आउटर मोस्ट पॉइंट, है ना. बहुत बार हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहता है. तो आउटफॉल यानी आउटेस्ट आउटर मोस्ट पॉइंट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम, ऑफ ऑल ड्रेनेज सिस्टम. सभी सीवर कलेक्ट करके सबसे बाहर में, जैसे भांडेवाड़ी ट्रीटमेंट प्लांट है नागपुर में फॉर एग्जांपल, तो भांडेवाड़ी ट्रीटमेंट प्लांट पे जो सबसे आखिरी में इंटरसेप्टिंग सीवर जाएगा उसको आउटफॉल करके बोलते हैं. वहां पे एक बहुत अच्छा पंप हाउस है, क्योंकि उसकी वो इंटरसेप्टिंग सीवर नीचे में लेवल है उसकी, है ना, ग्रेविटी से ले जाते हैं. सो इट इज एट द लोअर लेवल एंड द ट्रीटमेंट प्लांट इज ऑन द ग्राउंड लेवल, इट इज एट द बिट अपर लेवल. अब लोअर लेवल से अपर लेवल में ये सीवेज कैसे जाएगा भाई ट्रीटमेंट प्लांट में? तो इसलिए उसको पंप करने के लिए बहुत बड़े बड़े पंप लगाते हैं और ये सीवेज को उठा के ट्रीटमेंट प्लांट में लिया गया है पाइप के माध्यम से. दोज आर कॉल्ड एज द पंप्स, पंप हाउसेस. वो भी वहां पे बहुत अच्छे से हमें देखने को मिलेगा. Why I am repeating it? Because how these are to be laid, how these are to be excavated, etc., that we are learning. So types of the sewers we have seen. Another different types are the sanitary sewers, which collect the sewage, sanitary sewage. Storm sewer, it collects the storm sewage. Combined sewer, which collects both the sanitary, that is domestic, industrial, and the storm sewage. Lateral, submain, main, outfall sewer, ये हमने अभी सब देखे हैं. ठीक है, आउटफॉल मैंने वर्ड आपको बताया. सबसे आखिरी में जो इंटरसेप्टिंग सीवर लेके जाता है उसे आउटफॉल सीवर करके बोलते हैं, है ना. एक आपको समझने के लिए ये मैंने फिर से एक फोटोग्राफ या स्केच डाला है कि एक आधी कॉलोनी रहती है, वो कॉलोनी में कैसे हाउस सीवर्स रहते हैं कनेक्टेड टुगेदर and then they are connected to the mains, submains, etc. Just have the visualization of all this network I have given this. Okay. Now we are moving to our syllabus with this background. Excuse me. The laying of the sewers that is included in our syllabus. As like we have learnt in our concrete technology, that is the प्रोडक्शन ऑफ द कंक्रीट. तो उसमें कुछ स्टेप्स थे कि जिसको हमने बैचिंग बोला था, बैचिंग, वे बैचिंग, वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, वाइब्रेशन, etc., etc. In the same way, those were the various processes involved in the concrete making. In the same way, in the construction of the sewer, the another word to the sewer we call in our local language as the gutter line or the pipeline. These sewers may be pipes, sometimes they may be conduits. ठीक है, छोटे टनल भी हो सकते हैं. The construction of the sewer consists of the following works. So how the sewer is constructed? It is divided into all these 6 to 7
processes. The first is marking the center line of the sewers. Second is excavation of trenches. ये सीवर लाइन या पाइप बिछाने के लिए गड्ढे करना, एक्सकवेशन. पहला है मार्किंग सेंटर लाइन ऑफ सीवर, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द बेसिक वर्क, दैट इज गिविंग द लेआउट, और लेइंग आउट करके बोलते हैं, लेआउट देना सीवर का. क्योंकि ये एक बार दिया तो ये बार बार नहीं कर सकते इसको. एक बार सीवर लाइन आपने ले किया तो इसको फिर से खोद के नहीं डालना, रिपेयर करना बहुत तकलीफ का काम. So marking the center line of sewer is very important. Excavation of the trenches, checking the gradient, क्योंकि ग्रेविटी से ये सीवेज लेके जाता है, तो इसलिए जमीन के नीचे उसको उतार देना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए उसका ग्रेडियंट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके लिए वी यूज द लेवल्स. ओके, आइदर द थियोडोलाइट लेवल्स or nowadays the total station. Then preparation of the bedding. ये पाइप बिछाने के पहले all these sewer line should not settle down. ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार बिछाने के बाद में सालों साल हम उसको निकालते नहीं है फिर. तो वो यदि उसका स्लोप मेंटेन नहीं रहा, ग्रेडियंट नहीं रहा, पाइप ऊपर नीचे हो गए, तो वो उसमें से सीवेज जाएगा नहीं, ब्लॉक हो जाएगा. तो बेडिंग उसको बोलते हैं. नीचे में कंक्रीट हम देते हैं पाइप के. बाद में लेइंग ऑफ द सीवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. लेइंग ऑफ द सीवर्स इज नॉट ओनली लेइंग इन लाइन, यानी उसका जैसे लेआउट है लाइन से तो ले करना ही है, लगाना ही है, बट इट शुड बी लेड इन प्रॉपर ग्रेडियंट ऑल्सो. उसका जो स्लोप है वो भी इंपॉर्टेंट है. जॉइंटिंग बाद में, क्योंकि सीवर लाइन जो है, सीवर पाइप्स जो है, यदि पाइप है तो ये समझो 4 किलोमीटर की सीवर लाइन है तो 4 किलोमीटर के पाइप नहीं बनाते हम एक साथ में, बिकॉज फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पज इट इज डिफिकल्ट, फॉर द कास्टिंग ऑफ द पाइप डिफिकल्ट, मेंटेनेंस डिफिकल्ट. therefore we produce the pipes in segments, in parts. 5 मीटर 10 मीटर वगैरह ये साइज के पाइप रहते हैं, और उसको हम ले करते हैं और उसको जॉइंट करते हैं बाद में. ये जॉइंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस जॉइंटिंग इफ नॉट डन प्रॉपरली, it will not only allow the sewage which contains harmful bacteria etc leaking through those joints and may enter into the adjacent drinking water pipeline or some well etc. अब बाजू में ये गटर लाइन के बाजू में एखादा कुआं है या ड्रिंकिंग वाटर का कोई सोर्स है, पाइपलाइन वगैरह, तो उसमें ये पाइप जॉइंट यदि बराबर नहीं रहे तो उसमें से लीक होके जा सकता है. ये पहला धोखा. और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि बरसात का जो पानी जमीन में परकोलेट हो जाता है, इनफिल्ट्रेट होता है, वो भी ये जॉइंट के माध्यम से सीवर लाइन में आ सकता है. तो ये जॉइंटिंग बहुत ही, एवरी स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द बैक फिलिंग, जो गड्ढे हम करते हैं पाइप डालने के बाद में उसको फिर से भर देना पड़ता है, वो बैक फिलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका कॉम्पैक्शन वगैरह लेना. ठीक है, तो वन बाय वन वी विल मूव. द फर्स्ट इज द मार्किंग द सेंटर लाइन्स ऑफ द सीवर. ये सीवर लाइन का एखादे एरिया में बिछाना है तो पहले वी हैव टू सर्वे ऑल द एरिया. यानी हम सर्वे करते हैं, हाउस टू हाउस जाते हैं, एखादा मैप होगा तो वो मैप लेते हैं, वो मैप के ऊपर में हर घर को लोकेट करते हैं, रोड्स लोकेट करते हैं, सर्वे करते हैं, कहने का मतलब. और सर्वे करने के बाद में देन वी प्लॉट दी, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जो सीवर लाइन डाल रहे हैं वो रोड के बीच में से ना हो, वो कहीं तो भी रोड के साइड से जाना चाहिए, है ना. कहीं गलती से अभी कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है और आपको रोड से ही ले जाना है तो वैसा एखादे बार करना पड़ सकता है.
लेकिन 99% वी अवॉइड दैट सीवर लाइन टू बी टेकन थ्रू द रोड, है ना। बहुत बार तो ये प्लानिंग से होता है, तो पहले सीवर लाइन डाली जाती है और बाद में रोड्स वगैरह डेवलप होते हैं। लेकिन अभी आजकल कैसा है कि द बिल्डिंग्स आर टेकिंग प्लेस एट ए वेरी हायर रेट स्पीड, and then all these developmental activities are taking place, roads, gutter lines, drinking lines, है ना। नागपुर में जैसे बेसा, बेल तरोड़ी, मनीष नगर वगैरह एरिया है, बहुत सारे बड़े शहरों में सभी तरफ ये प्रॉब्लम है कि ग्राम पंचायत के इसमें डेवलपमेंट हुई है, बाद में वो सिटी में आए हैं, तो वो ग्राम पंचायत ने जैसे चाहिए वैसे डेवलपमेंट नहीं किया, तो बाद में सीवर लाइन बाद में डालना पड़ा है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, फर्स्ट दैट एरिया टू बी सर्व्ड प्रॉपरली, जैसे यहाँ दिखाया गया है, और बाद में इसके ऊपर में जो जो हमारे अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द हाउसेस, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द प्लेसेस अवेलेबल बिटवीन द हाउसेस ऑन द मैप, द हाउस lines, house sewer lines, house plumbing lines, the sub-main lines, the mains lines, the trunk sewers, etc. All these, the main sewer line, etc. All these are needed to be plotted in a proper scale on the map. उसके ऊपर पहले प्लॉट करने के बाद में ही हम आगे में एग्जीक्यूशन के लिए जा सकते हैं, एक्सकवेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्योंकि फ्रॉम दिस मैप वी विल गेज और वी विल हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द sewer lines or of all various types of the sewer lines, mains, sub mains, house, trunk lines, etc., branch lines, उसकी लेंथ आपको पता चलेगी और उसके लेंथ के हिसाब से भले ही ये प्लान में हमें पता चल रहा है इसके, हमको उसको एल सेक्शन करके बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, वो एवरी लाइन के प्लॉट करके हमें ग्रेडियंट भी देना पड़ेगा, स्लोप, बहुत अच्छा स्टडी करना पड़ता है। बिकॉज ऑल एंड ऑल, आफ्टर ऑल, ओवरऑल दिस सीवेज शुड बी ब्रॉट एट द आउटफॉल पॉइंट और एट द ट्रीटमेंट प्लांट, तो सभी के स्लोप भी सोचना पड़ता है, लेंथ in the plan as well as the slope in the longitudinal section of every sewer line is to be taken care of, so that ultimately finally the sewage will come with gravity at the outfall point without the need of the pump. अब बहुत आखिरी में आने के बाद पंपिंग करना पड़ा तो कोई हरकत नहीं है, लेकिन क्योंकि पंपिंग के लिए खर्चा आता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लगती है, पंप लगते हैं, तो इट इज एक्सपेंसिव। सो देयरफॉर दीज आर ऑल पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ बिफोर मार्किंग द सेंटर लाइन ऑफ द सीवर ऑन द ग्राउंड। ये सब होने के बाद में अब हम हमारे जो एरिया है, छोटे छोटे या जो भी है, जैसे समझो एक आधा एरिया, एक आधा विलेज है, तो वो गांव में फिर ये मैप हाथ में रखते हुए वी विल प्लॉट और वी विल मार्क विद द हेल्प ऑफ द व्हाइट लाइम, जो चूने की लाइन रहती है, चूना चूना पाउडर लेके उससे हम लाइन मार्क करेंगे ये सीवर लाइन की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लाइन मार्क्ड ऑन द मैप based on the locations of the houses, roads, etc., adjacent to the roads, adjacent to the houses, etc. And generally the principle is that there's this laying or planning of this sewer line is done from the outfall ends toward the starting point, यानी सबसे जो एंड है वहां से लेके तो इसको हम शुरुआत तक के, जहां से शुरू से ये सीवेज लेके जाना है वहां तक के इसको मार्क करेंगे, जमीन के ऊपर में भी और मैप के ऊपर में भी। तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द सीवर्स आर जनरली लेड स्टार्टिंग फ्रॉम देयर आउटफॉल एंड्स towards their starting point. Okay, this is very important, that planning is to be done
from the outfall end, that is from the treatment plant location and its level, ground level, to the location and level at the beginning of the collection of the sewage. This is the first point I mean to stress. Well, after doing all these studies and all these plottings on the map, then the location of the various appurtenances like the manholes etc है ना, बीच में हमें manhole देना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए, साफ सफाई के लिए, कुछ और भी appurtenances है उसको भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो पहले मैप के ऊपर हम लोकेट करेंगे और फिर जमीन के ऊपर उसको मार्क करेंगे. So manholes and appurtenances are required to be located and constructed as per drawing. That is the L section, that is longitudinal section of the sewer, and then laying the sewer pipe straight between the two manholes. है ना, इसके कुछ नॉर्म्स है कि 50 मीटर या 100 मीटर में 2 मैनहोल रहना चाहिए या हर 100 मीटर के बाद में एक मैनहोल आना चाहिए, तो वो देना ही है आपको. ये जो भी नॉर्म हो गए, मैंने 100 ऐसे ही बताया आपको, 100 हो गए, 50 हो गए, 200 हो गए, लेकिन जनरली डिस्टेंस इतना रहना चाहिए, रहता है 2 मैनहोल में कि जो लोग उसके अंदर से उसको सर्विसिंग कर सके, रिपेयर कर सकते, यदि वो गटर लाइन ब्लॉक है, चोक है तो. ठीक है, वो सीवर लाइन जो है. तो द सेकंड पॉइंट इज द appurtenances, various appurtenances like the manholes, the rainwater collecting holes etc, all the various appurtenances we will be listing later on. All those are marked over this map first and then marked over the ground and the L section of the sewer, and then laying the sewer's pipeline straight between the two manholes. So this is the second step to be taken. Now we will have the list of certain sewer appurtenances. We will be learning these appurtenances in our maybe unit number 3. ठीक है, ये यूनिट में है या 3 में है वो पढ़ते हैं. इसकी लिस्ट तो हम अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से appurtenances है ना. ये वर्ड नया शायद हो सकता है आपको, APPURTENANCE, appurtenances, सीवर appurtenances. ठीक है, अदर देन सीवर जो भी स्ट्रक्चर्स रहते हैं उसको सीवर appurtenances बोल सकते हैं. द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कंस्ट्रक्टेड एट सुटेबल इंटरवल्स along the sewerage system to help its efficient operation and maintenance are called as the sewer appurtenances. Okay, I think you understood, because since day one I am trying to explain you what is sewerage system, what is sewer, what is sewage, and what are the sewer appurtenances. I have made you conversant with this word appurtenances. So these are the various structures which are necessary to maintain the sewerage system. Okay, which are these appurtenances? Their list are here. You can note down in your notebook. They are the manholes. They are called as the drop manholes. Another type of the manholes are the drop manholes. Sometimes to see inside the sewer line, gutter line, we need light. So there are certain holes provided in the sewer line. They are called as the lamp holes. And lamp holes are very important. They not only give the light between the manholes or between the sewer line, but they also indicate the presence of the toxic gases. Toxic or इनफ्लेमेबल गैसेस है ना, इसमें से इथेन मीथेन निकलते जो ज्वालाग्राही रहते. सो लैम्प होल्स आर प्रोवाइडेड. क्लीन आउट्स, कुछ साफ सफाई करने के लिए बीच में से कुछ होल्स रहते हैं, उसको क्लीन आउट करके बोलते हैं, पंपिंग करके निकाल सकते हैं. स्ट्रीट इनलेट्स कॉल्ड गलीज, रोड के ऊपर में हमको आजू बाजू दिखते हैं, जो स्टॉर्म सीवेज है उसको बाजू में ले जाने के लिए रोड के वहां पे जो इनलेट रहते हैं है ना, बहुत बार हम कंक्रीट रोड के बाजू में या रोड पे दिखते हैं,
वो they are called as the street inlets or called as the gullies also. Catch basins, again certain appurtenance which helps in collecting the storm water, sewage, etc. Flushing tanks, sometimes for cleaning the sewer line due to blockage of the sewage, some arrangement is done which flushes the sewer line, cleans the sewer line. They are called as the flushing tanks. The sewage contains certain floating material in the form of the oil और grease, है ना. बहुत बार क्या होता है कि वो सीवेज में ऑयल, ग्रीस, इस टाइप का मटेरियल आता है जिसमें तेल रहता है. कोई एखादे फैक्ट्री का है या एखादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मेंटेनेंस का वर्कशॉप है, तो उसमें से ग्रीस वगैरह निकलता है, तेल निकलता है. वो पानी के ऊपर तैरता है वो, और वो बाद में पाइप को ब्लॉक कर सकता है, तो इसलिए उसको निकालना बहुत जरूरी है. उसको ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप्स करके बोलते हैं. समटाइम्स दिस सीवर लाइन और दिस गडर लाइन क्रॉसेस सर्टन स्ट्रीम्स और द नालाज. तो उस टाइम में उसके ऊपर से एक आधे बार यदि पानी पाइप से नहीं ले जा सकते हैं हम, ड्यू टू द हाई फ्लड लेवल ऑफ द रिवर और द नाला, then we provide the structures called as the inverted siphons. So these are the structures which are constructed across the streams which cross the sewer line. That streams like the river, streams like the small river, nalas, etc. And storm regulators, as the name suggests, they regulate the flow of the storm water. These are some of the appurtenances. There are numerous such appurtenances we'll be trying to learn. Then the marking the center line of the sewer, as we have discussed, we have finalized on the map the center line, all the appurtenances, all the sewer lines, various types. Now how they are to be marked on the ground? जमीन के ऊपर जब मार्क करते हैं तो वो मार्क करने के बाद में क्या होता है कि उसके ऊपर एक्सकवेशन चालू होता है. आइदर दैट एक्सकवेशन, जिसको हम हिंदी में खुदाई बोलते हैं, दैट एक्सकवेशन मे बी माय मशीनरी, है ना. आजकल जेसीबी, पोकलेन यूज करते हैं. और इट मे बी बाय द लेबर, है ना. मशीनरी नहीं है तो लेबर से हम करवाते हैं, खुदाई कर लेते हैं. तो हम सेंटर लाइन मार्क करते हैं. बाद में पाइप विड्थ के हिसाब से उसकी दोनों साइड की विड्थ भी मार्क करते हैं एक्सकवेशन की. अब क्या होता है कि हमने सेंटर लाइन वी हैव मार्क द सेंटर लाइन विद द लाइम पाउडर, चूने से, और बाद में विड्थ भी मार्क कर दिया पाइप के विड्थ के हिसाब से. 30 सेंटीमीटर डाया का पाइप है, 50 का है, 1 मीटर का है, 2 मीटर का है, 3 मीटर का है. उस हिसाब से वी मार्क द विड्थ अप टू विच इट शुड बी एक्सकवेटेड. लेकिन ये होने के बाद में जब लेबर या मशीन से काम चालू होता है तो आपके सेंटर लाइन वगैरह सब गायब हो जाते हैं. और फिर आपको जब वेन एवर यू हैव टू ले द पाइप इनटू दिस ट्रेंचेस, देन यू नीड सर्टन रेफरेंसेस to maintain the center line as well as to maintain the slope. Therefore, on both side of the center line, but outside the excavation line, the pegs यानी खुटिया, either वो लकड़े की खुटी रहती है, नहीं तो लोहे की खुटी रहती है, pegs are fitted outside the excavation line so that they will not be disturbed. And at the time of laying of the pipe, the reference of these pegs to be taken for fixing the center line of the sewer. So these pegs are fitted at certain offset, उसको OFF CET करके बोलते हैं, offsetting.
So I think you got what I mean to say. What is the meaning of offsetting? So marking the center line about half the trench width plus 0.6 meter. Fixing the pegs at 15 meter center to line can be used for finding out the center line of the sewer simply by offsetting. ठीक है, सेंटर लाइन मार्क करना है, एक्सकवेशन लाइन मार्क करना है, पाइप के डायमीटर से थोड़ा 50-60 सेंटीमीटर ज्यादा की ही विड्थ देना है, और बाद में वो एक्सकवेशन लाइन के बाहर भी पहले जब सेंटर लाइन मार्क करते हैं उस समय चेन का नंबर जो है 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर सेंटर पे, उसके दोनों साइड में 15 मीटर इंटरवल पे, 15 मीटर से इंटरवल पे दोनों साइड में ऑफसेट पेग भी ठोकना है टू गेट द रेफरेंस. नाउ हियर after now we are moving into the next step, that is the excavation trenches. You can see in your on your slide how they are excavated and how it is taken. After marking the layout of the sewer line on the ground, the trench of suitable width, trench and a gadda, khadda, the trench of suitable width is excavated between the two manholes and the sewer is laid between them. A trench is excavated and sewer or that pipeline is laid between two manholes. Further excavation is then carried out for laying the pipes between the next consecutive manholes. एक बार दो मैनहोल के बीच में का काम हो गया, पाइप डाल दिया, कि अगले एक्सकवेशन के लिए या अगले पार्ट के काम के लिए जाएंगे. जैसे हम कंक्रीट रोड का देखते हैं कि द कंक्रीट रोड वर्क इज डन इन पार्ट वर्क. First part completed, then they move to the next part. So here you can see in the photograph as well as sketches that how the excavation is done. The pipe diameter is small as compared to width of the excavation, and on the border, outside the border of this excavation width, the reference pegs are fixed. ये जो दोनों साइड में है, ये खड्डे के दोनों साइड में जो which will not be disturbed later on in the progress of work, है ना. ये outside the boundaries of the excavation, about 10-15 meters from the center, the pegs, reference pegs are fixed, which will not be disturbed during the execution of the work. And the width of the excavation is marked along with the center line. That excavation width will be more than width of the diameter of pipe. It will be 50 to 60 centimeters more. Then the excavation is processed. Excavation is progressed between the two manholes for laying the pipeline. If this excavation is deep enough, then there are lot of chances that the soil will slide down inside the trench. इसमें बहुत सारा धोखा ऐसा है कि ये जो एक्सकवेट खोदाई करते वक्त जो मट्टी रहती है, वो मट्टी ये गड्ढे के अंदर आ सकती है, और यदि गलती से इसमें लोग काम कर रहे हैं तो उनको भी तकलीफ हो सकती है ना. कुछ भी तकलीफ हो सकती है. बहुत बड़ा गड्ढा है तो उसके नीचे भी लोग जा सकते हैं, या आपको बार बार कंक्रीटिंग करते वक्त भी तकलीफ हो सकती है, साफ सफाई करनी पड़ तकलीफ. तो फॉर दैट पर्पज the vertical or the sloping wall of the excavation trenches are supported by wooden or the steel planks, P-L-A-N-K-S, planks. You can see in the photograph, they are called as the shoring. And between to these shores or the wooden planks, to remain in vertical or the slant position, some supports or the fixers are given. They are called as the struts. ये यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं, या ये फोटोग्राफ में आपको दिख रहे होंगे मेरे कर्सर मार्क के पास में. तो these are called as the struts and these are called as the shores, vertical wooden planks.
which holds the sides of the trenches. Okay, shoring and strutting आपने कहीं ना कहीं तो भी पढ़ा होगा जरूर. So these are used to help or to not slide the soil due to the deep excavation of the trenches for laying the sewer line. ठीक है. So shoring and strutting is done to avoid the slipping, falling of the soil, and also dewatering is also sometimes needed. एखादे बार क्या है कि ग्राउंड वाटर टेबल इट इज क्वाइट नियर टू द ग्राउंड लेवल, सो द डीवाटरिंग पानी निकालना भी पड़ता है पंप के हिसाब से. ठीक है. बाय बाय आइदर डन बाय ग्रेविटी और बाय द पंप द वाटर नीडेड टू बी टेकन आउट. ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड एज द शोर्स, साइड्स ऑफ द ट्रेंच. दीज आर द वुडन. ये वर्टिकल ऐसे बाजू में दिख रहे हैं और बीच में जो सपोर्ट उसको देते हैं दोनों साइड के प्लेट को, उसको स्ट्रट करके बोलते हैं, which holds these plates vertical or slant and supports the sliding soil or the soil should not slide. उसको shoring and strutting बोलते हैं. एक आध बार एग्जाम में पूछते हैं आपको. ये जैसे ये आपको फोटोग्राफ में दिख रहा होगा कि the trench is there. In this trench some wooden planks are there, they are the shores, and these are here the struts are there somewhere in the here you can see, or some arrangement is then to hold them at the place. कुछ और दूसरी अरेंजमेंट करते हैं स्ट्रट की बजाय. and you can see how the pipe is laid or that sewer is laid. ठीक है. now to the next step we will go. You can see with the help of these photographs which I have fixed here along with the slide कि कैसे काम चलता है. now preparation of bedding, लेइंग जॉइंटिंग ऑफ द सीवर्स. दो तीन ऑपरेशन है, बेडिंग, लेइंग और बाद में जॉइंटिंग ऑफ द सीवर्स. सो फर्स्ट नाउ द ट्रेंचेस आर एक्सकवेटेड विथ प्रॉपर सेंटर लाइन एंड स्लोप दैट इज द ग्रेड, सो दैट सीवेज में फ्लो इन सीवर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फ्लो ओनली. है ना, एक तरफ उतार रहेगा तो ही सीवर लाइन को स्लोप रहेगा और सीवेज जाएगा. which are transferred from the ground by means of the side rail and rod cranes, etc. Then the pipes are transferred. If the sewer pipes are not to be embedded in concrete, such as for the firm grounds, then the bottom half portion of the trench is excavated to confirm the shape of the pipe itself. यदि ये पाइप डालते वक्त नीचे में हार्ड रॉक है, यानी अभी वहां पे पाइप ले करने के बाद में वो पाइप नीचे में नहीं जाएंगे आगे में, है ना, 5-10 साल 15-20 साल में, तो फिर उसको बेडिंग करने की जरूरत नहीं है, कंक्रीटिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो स्ट्राटा हार्ड रहना चाहिए, हार्ड रॉक जैसा. तो पाइप का जो शेप है उस हिसाब से नीचे में एक्सकवेट करेंगे और उसके ऊपर पाइप बराबर प्रॉपर लेइंग करके उसके जॉइंट वगैरह फिलिंग करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है. In a ordinary or softer grounds, the sewer are laid embedded in concrete. How? You can see here. First, the trench is excavated. The trench is excavated. इसमें leveling बहुत important है, क्योंकि जो bottom of the trench will include the bottom of the concrete bedding. क्योंकि concrete bedding है, उसके ऊपर पाइप का लेइंग है और पाइप को भी स्लोप है, तो पाइप बेड लेवल, कंक्रीट लेवल, कंक्रीट बॉटम लेवल, उस हिसाब से एक्सकवेशन की लेवल रहेगी. सो देयरफॉर द एक्सकवेशन इज डन वेरी मेटिकुलसली एंड परफेक्टली. कैसे भी खोदाई करके नहीं चलेगा. सो ट्रेंच इज एक्सकवेटेड अप टू द लेवल ऑफ द बॉटम एम्बेडिंग कंक्रीट. ओके. एंड देन आफ्टर द एक्सकवेशन इज डन properly with all the designed invert level, desired slope as per longitudinal section, etc. Then the concreting is to be done. ये यहाँ पे जैसे फोटोग्राफ आपको बेड कंक्रीट जिसको बोलते हैं बेडिंग. सो बेडिंग कंक्रीट इज डन and then over that bedding concrete now the pipe is laid. So after bedding concrete is laid in required alignment and levels,
The sewer pipes then lowered down into the trench either manually or with the help of the cranes, that is machines or bigger pipelines. है ना, यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड कि ये पाइप शिफ्ट करना ये भी एक स्किल्ड वर्क है, एक लाइन में, सीधे लाइन में, और उस विथ स्लोप आल्सो, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन द स्लोप. So therefore the slope needed to be provided for this bedding concrete also. उसको देंगे तो पाइप को बराबर स्लोप आएगा. तो ये सब केयर लेना पड़ता है एज ए सिविल इंजीनियर हमको. ठीक है, तो ये किया हमने either with the help of the labor or with the help of the machine. We have laid the pipe over this bedding. ठीक है, ये bedding के भी कुछ norms है. The sewer pipelines are usually laid from the lowest point with their sockets facing up the gradient on desired bedding. Thus, the spigot end of the pipe can be easily inserted on the socket end of the already laid pipe. Spigot और socket ऐसे joint का नाम रहता है. तो ये जब पाइप लेइंग करते हैं तो उसका जो लोएस्ट एंड है, दूसरा एंड, वहां से लेके तो अपर एंड तक की इसका लेइंग करते हैं. और एक पाइप ले करने के बाद में उसका जो स्पिगॉट जो जॉइंट रहता है उसके अंदर दूसरा पाइप फिक्स करते हैं. और फिर वो जॉइंट को, जैसे एक कॉलर वगैरह रहती है, तो उससे उसको जॉइंट को फिलिंग करते हैं कंक्रीट से या मॉर्टर से, सीमेंट सैंड मॉर्टर से, so that the pipe will not move, the joints will not get cracked, and there will not be any leakage. Again I will repeat that all this work is done very correctly, very meticulously. ये जो है ना, स्पिगॉट एंड सॉकेट जॉइंट करके बोलते हैं. आपने कहीं तो भी जॉइंट्स पढ़ा होगा, तो वो जॉइंट इसमें रहते हैं. either these pipes, various materials of the pipe are there, we will be learning later on. These are the various types of the bedding in the firm soil, bedding in the impermeable soil, bedding in ordinary soil. ठीक है, ये these are all the as per the Indian standard norms. बहुत डिटेल में हमको जाना नहीं है, लेकिन बेडिंग का मतलब समझ लेना है. यदि हार्ड रॉक में या फर्म सॉइल में है तो वहां पे नीचे में कंक्रीट देने की जरूरत नहीं है. सिर्फ पाइप का जो बॉटम है उसका शेप दिया, उसमें पाइप एम्बेड किया, ले किया, और बाजू उसके में कंक्रीट डाल के, ताकि वो पाइप इधर उधर ना सरके खिसके, इसलिए बाजू में कंक्रीट डाल के उसको फिक्स कर डालते हैं. इफ द बेड इज नॉट गुड, then the concrete bedding needed to be provided, as has been shown here, bedding in the firm soil. ठीक है, so these are all the examples or the sketches of the bedding shown. So friends, we have excavated the sewer line properly. We have performed or concreted the beds. We have laid the pipe properly with the help of the labor or with the help of the machine. We have fixed the joints also correctly, watertight joints. But still, before backfilling or completing the work, we need to test the water tightness of the sewer line or the pipeline or the gutter line. है ना, हमें उसको टेस्ट किए बगैर उसका काम खत्म नहीं करना, बैकफिलिंग नहीं करना है. तो उसके लिए उसका टेस्टिंग किया जाता है, विच इज कॉल्ड एज द हाइड्रोलिक टेस्टिंग ऑफ द सीवर. ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम में एक आध बार नोट भी आती है. आई थिंक यू गॉट द पॉइंट. आफ्टर द पाइप्स आर फिक्स्ड इनटू द पोजीशन एंड देयर जॉइंट्स आर कनेक्टेड, देयर जॉइंट्स आर कॉन्क्रीटेड, पाइप के जॉइंट्स, और वो होने के बाद में समझो बिटवीन टू मैन होल्स द वर्क इज कंप्लीटेड. है ना, हमने बोला कि दो मैन होल के बीच में एक एक काम करते हुए हम आगे में जाते हैं, और जनरली नीचे से काम चालू करते हैं, लोअर एंड टू हायर एंड, आउटफॉल से लेके तो अपर पॉइंट तक के. एंड जनरली वी परफॉर्म्ड ए फिक्स्ड लेंथ ऑफ द सीवर लाइन, आइदर इट विल बी बिटवीन द टू मैन होल्स और सर्टेन लेंथ, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर की लेंथ हम काम करते हैं खत्म, और फिर आगे में जाते हैं.
तो ये होने के बाद में ये लीक प्रूफ हुआ कि नहीं, यहाँ पे नहीं ये नहीं हो गया काम और खत्म हो गया, हाथ ऊपर किया, ऐसा नहीं। वी हैव टू चेक इट्स वाटर टाइटनेस, that is called as the hydraulic testing of the sewer. 2 3 methods are there, only simple methods are there, they are not at all difficult, but they are asked in exam sometimes. So first is the test for leakage or water test. The sewers are tested after giving sufficient time for the joints to set for no leakage. यानी पूरा काम होने के बाद में जॉइंट को हमने क्यूरिंग वगैरह किया अच्छे से, पाइप जॉइंट को, क्योंकि उसमें मॉर्टर है, और 10 15 दिन 21 दिन हो गए या जो भी समय है, तो उसमें उसके बाद में हम इसको टेस्ट करते हैं। द सेक्शंस आर टेस्टेड बिटवीन द मैनहोल्स टू मैनहोल अंडर ए टेस्ट प्रेशर ऑफ अबाउट 1.5 मीटर वाटर हेड। यानी क्या करते हैं कि जो दो मैनहोल के बीच में का जो पाइप है, एक साइड से उसको ब्लॉक करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मैसनरी, और दूसरे साइड से उसमें पानी छोड़ते हैं, और आधा पाइप या लगभग पूरा पाइप पानी से भर डालते हैं, एंड इट इज केप्ट, द वाटर इज फिल्ड इनटू द पाइप बाय क्लोजिंग वन एंड, and then water is brought with the help of certain inlet pipes etc, and the second end is then also plugged, and then water level into this pipeline is tested for 5 10 days. ये पानी में की लेवल ये पाइप के नीचे नहीं जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। यदि ये कम हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो भी लीकेज है, और इसके लिए जो वाटर हेड या पाइप रखते हैं या जो वाटर हेड भी देते हैं, हेड आप अच्छे से पढ़ रहे हैं वाटर हेड, तो दैट इज 1.5 मीटर वाटर हेड, यानी 1.5 मीटर की पानी की दीवार का जितना वजन होगा उतना पानी हम ये पाइप में छोड़ते हैं, या उसका प्रेशर उतना डेवलप करते हैं। जैसे मैंने बताया, डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ द सीवर इज प्लग्ड, वाटर इज फिल्ड फ्रॉम द अपर मैनहोल, द डेप्थ ऑफ द मैनहोल is maintained about 1.5 meter, depth of water in manhole, the sewer line is inspected and the joints which leak are repaired. sewer line को इंस्पेक्ट करते हैं क्योंकि अभी इसका बैक फिलिंग हुआ नहीं है, इसके जॉइंट ऊपर से दिख रहे हैं, तो कहां से पानी लीक हो रहा है वो यदि हमें दिख गया तो उसको हम निकाल के फिर से रिपेयर कर सकते हैं। ये एक मेथड हो गई। दूसरी मेथड है एयर टेस्टिंग, डन इन लार्ज diameter pipes. When the required quantity of water is not available, it is done by subjecting the stretch of the pipe to an air pressure of 100 millimeter of water by means of the pump, either hand pump or the electrical pump. तो ये पाइप लाइन में क्या करते हैं, दोनों एंड उसके प्लग करते हैं, और इसमें the compressed air is forced into this pipeline, and the pressure of that compressed air is 100 millimeter of the water. Either it is with the help of the hand pump or with the help of the compressor. और ये प्रेशर, if this pressure, इसको टेस्ट करते हैं बाद में ये with the help of the gauge, whether the pressure is 100 mm or it is falling, and the air pressure is generally kept at 75 mm, यानी कम भी हुआ तो 75 mm से कम नहीं होना चाहिए। If it is less than 75 mm, the joints are required to be repaired. If it is maintained at 75 mm, the joints are assumed to be watertight. In case of drop more than 25 mm, that is less than 75 mm, the leaking joints should be traced and suitably treated to ensure water tightness. The exact position of the leakages can be detected by applying soap solution to all the joints in the line and looking for air bubble. सबके ध्यान में आया होगा है ना। हमारे मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, इसके जो ट्यूब टेस्ट कैसे करते हैं, पहले हवा से भरते हैं और फिर उसके ऊपर में साबुन का पानी या कुछ भी पानी में उसको डुबाते हैं,
और फिर यदि बबल आता है तो वहां पे उसको ये लीकेज है करके देखते हैं और उसको रिपेयर करते हैं। बस वैसे ही करना है। पाइप जो है वो पाइप जहां से लीक है ऐसा ध्यान में आया तो उसके ऊपर सोप सॉल्यूशन लगाना और वो लीकेजेस का लोकेशन फिक्स करके उसको रिपेयर करना। ठीक है। So this is the second method. First is with the help of the creating 1.5 meter water head. Second is by the air testing by creating 100 millimeter of the water pressure with the help of the pump, and it should not fall below 75 mm. That loss should not be more than 25 mm है ना। 100 में से 75 या 100 में से 25 गए तो 75 बचेगा, तो 75 से नीचे नहीं रहना चाहिए प्रेशर, या लॉस जो भी है वो 25 mm से ज्यादा नहीं रहना चाहिए है, तो इसका मतलब कहीं तो भी लीकेजेस है। So these are the two tests, and the third test is carried out to check the straightness of the pipeline or the alignment. टेस्ट फॉर स्ट्रेटनेस ऑफ द अलाइनमेंट है ना। पुराने जमाने में क्या था, या इवन आज भी बहुत जगह पे, या आज भी ड्यू टू ह्यूमन एरर हमारे पास में टोटल स्टेशन थियोडोलाइट है, लेकिन फिर भी अलाइनमेंट हमारी सीधी रहनी चाहिए। वो कहीं गड़बड़ हो गई तो वो पाइप में से सीवेज फ्लो होता है, वो फिर से आड़ा आड़ा टेढ़ा फ्लो होगा और चोक होने के बहुत चांसेस है। तो स्ट्रेट अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। In earlier days, yeah, in today also, it is checked with the help of placing a mirror at one end. एक टोक को पाइपलाइन के मिरर रखना और दूसरे एंड में ए लैंप या एखादा दिया जो है या लाइट है वो दूसरे एंड में रखना। इफ द पाइपलाइन इज स्ट्रेट, फुल सर्कल ऑफ द लाइट विल बी ऑब्जर्व। वो जो मिरर है वो मिरर के ऊपर में पूरा लाइट दिखेगा, एक एंड दूसरे एंड में जो लगाया हुआ है। I think you got, by placing a mirror at one end of the sewer line and a lamp at the other end, if the pipeline is straight, full circle of light will be observed. And we can confirm that the alignment or the work done is correct and the straight. यदि वो लाइट का फुल सर्कल आता नहीं है तो इसका मतलब कहीं तो भी हमारे एग्जीक्यूशन में, हमारे काम करने में मिस्टेक हो गई है, तो हमको फिर से वो कहाँ गलती हुई है उसको दुरुस्त करना है। तो इसलिए एज ए सिविल इंजीनियर अभी से हमको ये प्रैक्टिस करना है इन योर रेगुलर लाइफ, दैट वी शुड नॉट बी हैव दैट नेचर ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग एवरीवेयर है ना। अभी यदि हमें आदत हो गई, अरे चलता है हो गया है, तो फिर आगे में बहुत डिफिकल्ट जाएगा। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है स्ट्रेटनेस ऑफ द पाइपलाइन का, ऐसे बहुत सारे काम आपके साइट पे करने पड़ते हैं। रीइंफोर्समेंट है, ये है, कहीं गलती नहीं चलती है, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं चलता है, चलता वाला चलता है वाला आजकल बहुत एक्यूरेसी है। ठीक है। सो टुडे वी विल टेक द ब्रेक हियर, नेक्स्ट टाइम वी विल मूव on to the remaining part of these activities.